I'm taking this chapter. Okay, this chapter means I'm going to take up only the teachings of Buddhism and Jainism. That only you asked me, right? The chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings. As you know that this chapter starts with the 600 BC to 600 CE, all the 4 chapters of the first book. That was the time when there was a lot of debate of sacrifices, because if you talk about the Vedic religion, Brahminical traditions, they believed in yajnas and sacrifices. So a lot of debate was there at that time whether the sacrifices are justified or not. And first millennium BC considered as a turning point in the world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एक टाइम था जबकि बहुत सारे that was the time of the emergence of many thinkers, many beliefs came into existence, as Zoroastrian in Iran, Hongzhi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, and Mahavira and Buddha in India are seen. As far as the Rig Veda was concerned, from 1500 to 100 BC, initially collective sacrifices, then individual sacrifices, they believed. Upanishads were curious about meaning of the life, and they too believed in the sacrifices. Then, if we talk about the Buddhist text, debates took place in Kutagrashala, literally a hut with pointed roof. एक हट होता है ना, उसका रूफ जो है पॉइंटेड बना देंगे तो उसको यहाँ प्लेट गलती से लिख गया है, that is a place in Kutagrashala. If a philosopher succeeded in convincing one of the rivals, followers of the later also become his disciples. That was the time when Buddhism and Jainism questioned the authority of Vedas. Why? उन्होंने वेद की अथॉरिटी के ऊपर क्यों प्रश्न उठाया? Because they believed in the self effort rather than depending on the priest to attain moksha. हम अपना काम करें ना, हम अपना एफर्ट करें. Why should we believe in others? Why should we think of others? We must do the self effort. हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना प्रयास करना चाहिए. और उन्होंने पंडितों की जो अथॉरिटी थी कि वो मोक्ष तक पहुंचाने के लिए ऐसे साधन और ऐसे तरीके बताएंगे कि व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच जाएगा. They did not believe that. और साथ में उन्होंने भी ये भी कहा कि मनुष्य खुद अपने कार्य करके उस तक पहुंच सकता है. कैसे पहुंच सकता है? बुद्धिस्ट पिटक, लिटरल मीनिंग जो है वो, पिटक का मतलब बास्केट. बुद्धिस्ट पिटक के अंदर, बास्केट के अंदर क्या क्या चीजें मिली थी, क्या क्या चीजें हमने पाई. ठीक है, उसकी बात बोलते हैं. अब 3 प्रकार के पिटक थे. एक थे विनय पिटक, एक था शुद्ध पिटक और एक अभिधम्म पिटक. विनय पिटक में रूल्स ऑफ दोज हु जॉइंड संघ. संघ क्या था? अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, एक ही तरह के बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे. शुद्ध पिटक क्या था? शुद्ध पिटक वाज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. देन
अभिधम्म पिटक dealt with the philosophical matters. ठीक है, धर्म में क्या दर्शन है, धर्म का क्या दर्शन है उसके बारे में बताता था. अदर टेक्स्ट इंक्लूडेड दीपवंश, क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, and Mahavamsha, the great chronicle, Sri Lankan text, regional text. ये सारे सोर्सेस थे बौद्ध धर्म को जानने के लिए. उस समय में बौद्ध धर्म किस लेवल पर पहुंचा था उसके विषय में बताने के लिए. ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंशा, महावंशा, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज मक्खाली गोशाला, fatalist and the materialist. Now we are talking about what is the difference between materialism and fatalism. हमें किस चीज को मानना है. देन मक्खाली गौशाला, आजीविका सेक्ट, एक सेक्ट था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, दोज हु explain pleasure and pain cannot be changed by transmigration of soul. उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि pleasure and pain of an individual cannot be changed. These are the teachings. They can neither be increased nor decreased because you get them out of your deeds. Everything is predestined. और सब कुछ पहले से निश्चित है. अजिता केश कंबलिन, ट्रेडिशन ऑफ लोकायत मटीरियलिस्ट. ठीक है, लोकायत मटीरियलिस्ट में देयर इज नो नेक्स्ट वर्ल्ड. हम मानते हैं ना कि मरने के बाद भी हमारा पुनर्जन्म होता है, तो यहाँ पर वो सब कुछ नहीं माना गया. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मानने से बेहतर है हम अभी अच्छे अपने कार्य करें, गुड डीड्स. देयर इज नो नेक्स्ट वर्ल्ड कि हम बाद में अच्छा करेंगे. नो, अ ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड सोल डज नॉट एग्जिस्ट. इनका ये मानना था. ओके, इनका ये मानना था. नाउ स्पेशली सिद्धार्थ वाज बुद्धा's name and then born in शाक्या क्लैन. ठीक है, शाक्या क्लैन में उनका जन्म हुआ था. Now when we talk about the teachings, there are 4 noble truths. 4 जो हैं वो सत्य हैं. 8-fold path to निब्बाना, निर्वाण की तरफ हमारे 8-fold path हैं, 8 तरीके हैं. मानना उनका ये था कि वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. दुनिया जो है वो परिवर्तनशील है और हमेशा परिवर्तित होती रहती है. वर्ल्ड इज सोललेस, आत्मा रहित है. हमें मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए. हमें बहुत खुशी में बहुत खुश और बहुत दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड. हर कुछ डेस्टिनी है, हर कुछ प्रीडेस्टाइन्ड है, हर कुछ पहले से सुनिश्चित है. Whether or not God existed was irrelevant. ईश्वर है नहीं है उसका महत्व नहीं है, आपके अपने कर्मों का महत्व है. सोशल वर्ल्ड वॉज क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस एंड नॉट बाय गॉड. हमने जिस दुनिया को, ये जो दुनिया है, सोसाइटी है, हमने बनाया है, गॉड ने नहीं बनाया है. और हमारे अपने एफर्ट के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए. This is a teaching for you, especially children. Why? Because you have to focus on your efforts, then only you will get the result. हम घर पे बैठ करके ये सोच लेंगे कि हमें रिजल्ट मिलेगा तो नहीं मिलेगा. That is not possible at all. So you have to focus on your effort. Very clearly it says that you have to focus on the individual has to focus on the individual effort, and that individual effort brings ultimate result.
Be lamps unto yourself, as all of you must work out your own liberation. आपको अपने अटेनमेंट के लिए, अपने लिबरेशन के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आपको अपने लिबरेशन के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई बहुत अच्छा करने के लिए अलग से आने वाला नहीं है। यू हैव टू डू थिंग्स गुड और बैड फॉर योरसेल्फ। संघ क्या था? ये था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, एक तरह के लोग थे जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, फाउंडेड संघा एंड इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड टू ज्वाइन। ठीक है, संघ का उन्होंने गठन किया और शुरुआत में संघ में केवल महिलाओं की एंट्री ही पॉसिबल थी। एंट्री ऑफ वुमेन वाज व्हेन आनंदा एक डिसाइपल थी। उन्होंने कहा कि हम महिलाएं क्यों नहीं घुस सकते हैं संघ में, क्यों नहीं आ सकते हैं, हमें भी एंट्री दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा भी डिवोशन गुरु के प्रति उतना ही है जितना पुरुषों का है। अल्टीमेटली फॉस्टर मदर गौतमी, फर्स्ट वुमेन भिक्षुनी, पहली महिला भिक्षुनी जो थी वो गौतमी बनी। Many such women became theirs or respected women who had attained liberation, जिन्होंने की निब्बाना प्राप्त करने के लिए संघ में अपने आप को शामिल किया। जब भिक्षुनीज जो थी वो शामिल हुई, भिक्षुनीज जो थी monks who had to live on alms, जो दूसरों के दिए हुए भिक्षा के आधार पर अपना जीवन यापन करती थी, वो भिक्षुनियां होती थी। भिक्षु और भिक्षुनीज वर द मेन रोल प्लेयर्स इन बुद्धिज्म। देन इंटरनल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक बेस्ड ऑन गण संघास। इंटरनल फंक्शनिंग जो थी, संघ की फंक्शनिंग जो थी वो डेमोक्रेटिक थी और बेस्ड ऑन गण संघ। गण मतलब लोग और संघ मतलब समूह, लोगों का समूह। और जो लोगों का समूह होता था वो आपस में बातचीत करके किसी भी निर्णय को लेते थे। राइट, नाउ वी टॉक अबाउट, हमारे ही पुस्तक में ये दिया हुआ है चैत्य और विहार क्या होते थे। ठीक है, नाउ चैत्यास, sacred sites with small shrines attached to them. कार्ले के चैत्य सुना होगा आपने। श्राइन्स होते थे, सेक्रेड प्लेसेस होते थे जहां पर लोग इकट्ठे होकर के और अपनी सभा, संघ की सभा या बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर बातचीत करते थे। ऐसी 4 इंपॉर्टेंट साइट्स या बुद्धिस्ट प्लेसेस, ये आपको मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है गोरखपुर से आगे, ये नेपाल में पड़ जाता है। ठीक, देन फर्स्ट प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट बोध गया, दिस इज द प्लेस। गया ये है, गया से थोड़ा आगे बोध गया, where enlightenment he got, who Buddha got enlightenment. Then Sarnath from Varanasi, Sarnath nearby, where the first sermon was given by Buddha. And Kushinara again, Kushinagar आज के डेट में उसको बोलते हैं, Kushinara was the place where he got Nibbana, निर्वाण प्राप्त हुआ। अशोक ने फिर जो है वो लुम्बिनी में एक अपना पिलर भी इरेक्ट करवाया था। नाउ स्तूपास, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, दे आर स्तूपास। आपके पुस्तक के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही सांची के स्तूप की बात कही गई है। राइट, स्तूपास ट्रेडिशन वाज प्री बुद्धिस्ट बट बिकेम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म।
बुद्ध के पूर्व भी ऐसा ट्रेडिशन था, लेकिन ये बुद्धिज्म से विशेष रूप से जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्यों? कंटेन्ड रेलिक्स ऑफ बुद्धा और अदर बोधिसत्वास। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा जो माउंड होता था, अभी मैं दिखाती हूँ, उसके अंदर दे कंटेन्ड रेलिक्स ऑफ महात्मा बुद्ध के, और जो बोधिसत्व होते थे, जो मॉन्क्स या भिक्षुनीज, जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे बोधिसत्व, उनके रेलिक्स, उनके जो रिमेन्स थे, उनमें उसको प्रिजर्व करके रखा गया था और उसके ऊपर एक बड़ा सा माउंट बना दिया गया था। कुछ कैसे बनाए गए? ये आपके बुक में ये भी है। डोनेशन से बनाए गए, जो कि शासक लोग थे उनके द्वारा दिए गए डोनेशन से इनको बनाया गया था। ठीक है, उनके द्वारा डोनेशन से बनाया गया, या किसने डोनेशन दिए थे? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली दिया हुआ है कि सातवाहना किंग्स ने जो है गेटवेज ऑफ सांची फाइनेंस्ड बाय आइवरी वर्कर गिल्ड। ठीक है, एंड देयर आर मेंशन ऑफ डोनेशंस बाय विमेन आल्सो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्तूपों को बनाने के लिए पैसा किसने दिया, तो एग्जाम्पल्स या हमें प्रूफ मिलता है कि सातवाहना रूलर्स ने दिया। सांची वॉज फाइनेंस्ड बाय आइवरी वर्कर्स गिल्ड। गिल्ड मतलब उनका जो समूह होता था, हाथी दांत का सामान जो बनाते थे, उनके समूह ने उसको फाइनेंस किया था। एंड मेंशन ऑफ डोनेशंस बाय विमेन आल्सो, महिलाओं ने भी डोनेशन दिए थे जिससे कि स्तूप बना था। नाउ दिस इज अ स्तूपा, ये सांची का स्तूप का है। ठीक है, स्तूप का आर्किटेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्तूपा सेमी सर्कुलर माउंड, जिसको कि अंड कहा जाता था, राइट। लेटर मोर evolved स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स, और भी तरह के स्तूप्स मिले हैं। Above and was hermica, a balcony-like structure representing abode of gods. ठीक है ना, ये यहाँ पर की भगवान विशेष रूप से। Above and was hermica, a balcony-like structure representing abode of gods. Arising from hermica was a mast, okay, often surmounted by छतरी और अम्ब्रेला। ठीक है, हर मंदिर में छतरी या अम्ब्रेला होता है। Around mound was a railing separating the sacred space from the secular. Okay, माउंट के चारों तरफ ये वाला, right? Enter through eastern gateway and walk around clockwise, imitating sun's course. लगता है कि हम सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। Initially plain structures, but later carving Amravati, Shaji ki Dehri in Peshawar. These are the examples of important stupas. Now, ये जो gateways हैं, these are known as तोरण द्वार, right? These are known as तोरण द्वार. Around mound, a railing separating the sacred space from the secular, that is Medhi. Then this enclosure wall, inside the gap inside the wall, that is known as, इसके अंदर जो gap होता है, when you enter from the gateways, then this wall is there. When you enter from the wall, there is a space in between the mound and the wall. In that space, you can take a round of that stupa, that is known as Pradakshina Path. That is not given here. Okay. Now, early sculpture showed Buddha by use of symbols. Empty seat meant a meditating Buddha. Stupa meant Mahaparinibbana. Wheel meant first sermon of Buddha. There are a few symbols, a few signs are there, which are also mentioned in your book. Other than Buddhism, other symbols were also engraved. For example,
trait depiction using animals, elephant, strength, wisdom, जो कि डिफरेंट मीनिंग रखते थे, उनका भी यहाँ पर डिपिक्शन किया गया है। बुद्धिज्म जो था वो आफ्टर बुद्धा, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू, दैट वाज महायाना बुद्धिज्म एंड हीनयाना बुद्धिज्म। Yeah, may not be clearly given in a book, but Mahayana Buddhism literally, the literal meaning is the great wheel. The earlier Buddhism by 1st century CE, changes in Buddhist ideas and practices. Now instead of self-effort, idea of savior in form of Bodhisattva developed. Okay, in the Mahayana. Now, they were compassionate beings who stayed on earth to help others attain salvation. जो पृथ्वी पर रुकता है, they were compassionate beings. वो कहते थे कि they were compassionate beings who stayed on earth, जो कि पृथ्वी पर रुके हैं और अल्टीमेटली वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं. They are the people, those who believed in Buddhism. Now Buddha came to be recognized as a human being. कब? हीनयाना बुद्धिज्म के अंतर्गत. Older traditions came back to be हीनयाना और lesser vehicle, जिसको हम छोटा चक्र के नाम से जानते हैं. However, older tradition prefer to call themselves as Theravadins, or those who followed the path of old teachers, the Theras. Now, if you talk about Jainism, which developed that time itself, that was preceded by 23 other Tirthankaras or the teachers. Jain जो गुरु थे उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता था, और ये 23 तीर्थंकर हुए, 23 तीर्थंकर्स वर देयर. एवरीथिंग, अब उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज एनिमेटेड, हर कुछ बनावटी है, एनिमेशन किया गया है उसमें. इवन रॉक एंड वाटर हैज लाइफ, और इवन रॉक्स एंड वाटर हैज life. There is nothing which is without life. And ahimsa is central to Jaina philosophy. Ahimsa is central to Jaina philosophy. जैन जो धर्म है उसकी फिलोसफी के अंदर अहिंसा सबसे बड़ी शिक्षा है. ठीक है, आपको किसी भी सूरत में वायलेंट नहीं होना है. अशोक ने अहिंसा के मार्ग को ही अपनाया था, जिसको कि मौर्य साम्राज्य के पतन का आगे चल करके एक कारण भी माना जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, जैनिज्म से साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ डिपेंड्स ऑन कर्म. आपके कर्म के आधार पर आपको उस तरह का जन्म मिलता है, और they believed in the theory of birth and rebirth. Asceticism is must to free one's self from karma, monastic life. आपको अगर कर्म से कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर अपने आप को इस जीवन से मुक्त करना है, बर्थ एंड रीबर्थ से मुक्त करना है, तो अपने को कर्म अच्छे करने हैं. Then they believe in the 5 vows, abstain from lying. आपको झूठ से बचना है. Killing, किसी को मारने से बचना है, क्योंकि पहले ही वो किसी भी हालत में, किसी भी रूप में वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. चोरी नहीं करनी है, अचौर्य. पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को पजेस नहीं करना है आपको, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी पजेस करते हैं, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव रखते हैं, तभी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है. एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी, आपको जो है वो
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब किन भाषाओं में उन्होंने अपने भाषण या अपने उपदेश दिए? अधिकतर प्राकृत, संस्कृत और कहीं कहीं पे तमिल का भी जिक्र आता है। Mahavir taught the idea of supremacy of human life and stressed the importance of the positive attitude of life, जो कि आपकी लाइफ स्किल्स में जुड़ते हैं। Mahavira's message of non-violence, अहिंसा, truth, सत्य, non-stealing, अचौर्य, celibacy, ब्रह्मचर्य and non-possession यानी अपरिग्रह। ठीक है, तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, brahmacharya or aparigraha is full of universal compassion, and this is the way how Mahavira gave his teachings. Okay, this is the basic symbol of Jainism, and different meanings are there. Okay, so this is the way how you need you need to understand the teachings of Jainism, the teachings of Buddhism, and they are making an important part of your chapter, though the chapter is not complete. We can talk in the next class.